begun in 2000, two brothers, Nagbhushan Reddy and Rukmandar Reddy, have handled many orders. But this year is a special one, and that is because on the auspicious consecration ceremony of the Ram Mandir in Ayodhya on the 22nd of January, these two brothers have come up with a massive and a sweet offering for Lord Ram. This 1265 kilo dry fruit laddu specially for Lord Ram. It's called Laddu Prasad, and this has many dry fruits, different kinds of dry fruits. The base is of course besan and lots of ghee, and the result is this massive Laddu Prasad. Anyway, Hyderabad is very famous for its big Laddu Prasad that is normally famous and very much evident during Ganesh Chaturthi festival, but this is the first time that these two brothers, Sri Ram Catering Services, have come up with this massive kind of laddu as a Laddu Prasad for Lord Ram. Not just that, this special vehicle that you see, it's an AC packed vehicle. This is going to commence its journey towards Ayodhya starting today over the next 3 days, and it will reach its final destination in Ayodhya, where this Laddu Prasad weighing 1265 kilograms will be distributed to the devotees after the puja. Not just that, these two brothers have also come up with 4 different other types of laddus, special laddus that will be given to the Lord itself and will be taken directly by the Ram Mandir Trust. And in fact, right now in Hyderabad, while it is all set to take that auspicious journey to Ayodhya, here you can see this has become the master showpiece. So many pilgrims have come here, so many devotees have come here. It has become a matter of great pride, as many devotees tell me that from their very small gully of Hyderabad, Sri Ram Catering Services has come up with this noble initiative. Two brothers, Nagbhushan Reddy and Rukmandar Reddy, have come up with this initiative to come up with this big Laddu Prasad, and it has not been an easy task to come up with a dry fruit laddu, besan based laddu. It has taken them nearly 30 hours of labor, and so many different workers have contributed and come up with their best efforts to come up with this gigantic laddu. And not just that, today as it is set to commence on that auspicious journey to Ayodhya, this place is packed. Union Minister G. Kishan Reddy will be flagging off this vehicle, and this is a special van. In total of 5 vans, they will be setting off for their journey to Ayodhya. In fact, let us go across and speak to the brothers to understand more about how much labor did it take to come up with this laddu and the significance of 1265 kilo as a number. A special sweet treat for Lord Ram in Ayodhya from Hyderabad, and this is being done by Sri Ram Caterers. They've been in running since since 2000, and now this time around, in the 24th year of its existence, they have come up with a very special offering to Lord Ram. They say that this is the biggest order that they have voluntarily taken up, and this is something that is giving them unparalleled joy. So 1265 kilo dry fruit laddu from Hyderabad that you can see has been made by two brothers, Nagbhushan ji and his brother, who have put in almost 30 hours of labor to come up with this beautiful offering. मैं आपसे पहली बार जानना चाहती हूँ, ये 1265 किलो नंबर क्यों? ये अयोध्या राम मंदिर पूजा बने, मोदी जी पूजा कर रहा था। उस दिन संकल्प करा हम लोग, मंदिर जिस दिन बनता उस दिन तक एक दिन को 1 किलो हिसाब से देना बोल के हम संकल्प करा। इसलिए हम 1265 डेज वाला मंदिर पूजा करके आज गुरुपुरा ये हो रहा, इसलिए 1265 डेज लड्डू में हम प्रसाद कर रहे हैं। क्या खासियत है इस लड्डू के बारे में बताइए थोड़ा सा, कितना बेसन, कितने ड्राई फ्रूट, क्या मेजरमेंट, क्या यूज़ किया? ये बेसन मैडम 350 किलो बेसन है, 700 किलो शुगर है, 40 केजी काजू है, 35 केजी बादाम है, 5 किलो किशमिश है और जाफरान है और पच्चा कर्पूर में घी है, इतना मिलाए में शुगर ऑयल पूरा मिक्स करके। तो
आज ये अयोध्या के लिए रवाना हो रही है, लेकिन इसको आप कैसे लेकर जा रहे हैं? 3 दिन का रास्ता है, किस तरीके के अरेंजमेंट्स आपने किए हैं ये लड्डू को लेकर जाने के? हम लोग पूरा 5 गाड़ी में जा रहा मैडम। ये एक गाड़ी पूरा भगवान का है, उसका अंदर एसी वो फैन भी रखा हुआ है। अच्छा, एसी है। एसी है, वो ठंडा रहता, खराब नहीं होता। उसका ऊपर भी टर्माकोल आ जाता, धूप भी नहीं गिरता। वहाँ से आलू आराम से ये 1 घंटा को 50-60 किलोमीटर हिसाब में हम प्लान करा, 4 दिन तक पड़ा। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो लड्डू है क्या ये आप डायरेक्टली भगवान को ऑफर कर रहे हैं या ये डेवोटीज के लिए है? ये पहले भगवान को हमारे को क्या है, 4 लड्डू अंदर भिजाने का है, बाकी का पूरा सामने रख के ये पूजा होने के बाद पूरा लोग बांटना है। अच्छा, अयोध्या ट्रस्ट के साथ आपने बातचीत करके ये इनिशिएटिव लिया है? ये अयोध्या ट्रस्ट को लेटर लिखा मैडम, लेटर लिखने के बाद 2 महीना के बाद वो परमिशन दिया मैडम, वहाँ जाके लेके आया मैडम। अच्छा, आपके भाई से बात करना चाहूँगी। पहले बात तो आप अपने परिचय दे दीजिए। मैडम मेरा नाम रुक्मांगद रेड्डी है, वो श्री राम कैटरिंग का भाई हूँ मैं, और ये बड़ा भाई है। तो 20 ईयर से कैटरिंग कर रहा है। तो ये संकल्प हुआ कि ऐसे भगवान को देने के लिए, जैसा हैदराबाद से अपना डोर और पादरक्षलू गया था, जैसे ही लड्डू भी जा रहा है, हमको बहुत खुशी है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये लड्डू बनाने के लिए कितने वर्कर्स का हेल्प लेना पड़ा? कितना घंटा लगा ये लड्डू बनाने के लिए? मैडम 3 दिन लगा, तो 30 मेंबर्स, तो पूरा 30 आदमी काम करा, 3 दिन करा। और ये जो मटेरियल्स है, जैसे आपने बेसन का इस्तेमाल किया, ड्राई फ्रूट्स, ये सब दर्शन जो डेवोटीज है आपके कॉलोनी में, इन्होंने डोनेट किया है या आपने खुद से? नहीं, किसी से कुछ नहीं ले, सिर्फ नागभूषणम रेड्डी तो जो संकल्प किया था उस दिन, उसी से ले, किसी से 1 रुपये भी नहीं ले रहे। अच्छा। तो वही खुद अपना का ले रहे बस। अच्छा, मुझे थोड़ा और बताइए, एक तो ये लड्डू आप बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट की तरह लेकर जा रहे हैं अयोध्या, वहाँ जाके आगे का कार्यक्रम क्या है? उधर जाने के, अयोध्या पहुंचने के बाद टेम्पल से पूजा, वो अपना प्रधान अर्चक रहते ना मैडम, उससे पूजा होता है। इसको पूजा होने के बाद उधर से बाहर आके वो डिवोटीज को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अब मुझे जानना है, आपने लड्डू तो है ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसके अलावा यहाँ पे भगवान राम का एक पोर्ट्रेट है, और क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं? यहाँ पे पुलियोरा दिख रहा है, क्या क्या है? इधर प्रसाद डिवोटीज के लिए प्रसाद बनाया है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो हैं। इधर प्रसाद के क्या लिए है प्रसाद में बताइए? पुलिहोरा है, परमान्नम है। परमानम क्या है? परमान्नम बोलो तो ये ऐसे गुड़ से, अच्छा, गुड़। जॉगरी से, राइस और जॉगरी और ड्राई फ्रूट्स। पायसम की तरह है? Yes, पायसम और बोलते हैं। क्या क्या ऑफरिंग है? ये और क्या है? ये तो लड्डू है। हनुमान, इधर अपना ताड़बंड हनुमान टेम्पल को समर्पित करेंगे। करेंगे। उधर जाते जाते, शोभा यात्रा में जाते जाते उधर हनुमान टेम्पल के पास जाएगा, ताड़बंड हनुमान टेम्पल, उधर पूजा करके उधर हनुमान को ये प्रसाद दिएगा, उधर से लेके सीधा शोभा यात्रा अयोध्या को जाएगा। अच्छा, आप जब अयोध्या की तरफ रवाना हो रहे हैं, 5 वैन्स लेके जा रहे हैं आप क्या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएंगे रास्ते में या डायरेक्ट अयोध्या जाएगा। अयोध्या जाने के बाद उधर अर्चकों के पूजा होने के बाद, पूजा होने के बावजूद बाद में वो डिवोटीज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो वहाँ पे पूजा करने आएंगे कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी में, और उनके ऑफिस से बातचीत हुई है इसके बारे में, लड्डू के बारे में, क्या वो जानते हैं? या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से बातचीत हुआ है आपके इस लड्डू प्रसाद के बारे में? नहीं, वो उतना बड़ा से बातचीत नहीं क्या ख्वाहिश होगा ट्रस्ट आपका? ट्रस्ट तो अयोध्या ट्रस्ट है ना, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, वो लोगों से परमिशन लिया हुआ है। उधर से ऑफरिंग लेटर आया है, उधर से लाने के बाद हम तो इधर काम शुरू किया है। ठीक है, फाइनल एक क्वेश्चन, आप इतना बड़ा एक भगवान के लिए मिठाई ऑफरिंग लेकर जा रहे हैं, डेवोटीज के लिए क्या बोलेंगे? वही हमारे को जो कृपा मिला भगवान राम से, सो उसका वजह से सबको को कृपा सब डिवोटीज को मिलना चाहिए बोल के प्रार्थना करेंगे।